مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ إليك ثم جعلت ثم ثم يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مطالب عبدالستار صاحب برائے GNC میں سورۃ یاسین میں قرآن کریم میں یہ 3 پیغمبروں کے واقعے کو ذکر فرمایا. اس کو عرض کرتے ہوئے عرض کیا تھا اللہ کا نام بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عظمتوں والا ہے پروردگار عالم. اس مالک کی جتنی تعریف کرو اتنی تھوڑی ہے جس نے سارا جہان بنایا ہو. اس خالق کی جتنی تعریف کرو اتنی تھوڑی ہے وہ ہے کہ جس نے تمام نظام عالم کو چلایا اور بنایا اور تمام کو کھلانے پلانے کے قادر ہے. کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو سونے چاندی کے اندر مشغول کر دیا اور کسی کو فرمایا کہ چونکہ میرا نام جپتا رہے، ہر وقت تیری زبان ہو، میرا نام ہو، تیرا پیٹ میں بھرتا جاؤں. کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، کسی کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن کریم، ایک کے ہاتھ میں کنجری کا ہاتھ اور ایک کے ہاتھ میں اللہ کا نام گن کر لینے کے لیے تسبیح. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں سے اور اس مالک کے نام لے لے کر کے اپنے آپ کو اس قدر عاجز بنا لیتا ہے، خاکستر بنا لیتا ہے کہ وہ ہر ذرے پر اللہ پاک کی عظمت کا تصور اپنے آپ بنا لیتا ہے. اور ایک وہ کمینہ ہے جو صبح شام خدا بند عالم کو بکواس کرتا ہے. اس کی شان و کبریائی ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کسی چیز سے نوازا، کسی کو کسی چیز سے نوازا. کون ہے جو اس کے سامنے دم مارے؟ کسی کو ایسی زندگی دی کہ ساری عمر اللہ اللہ میں گزر جائے اور کسی کو ایسی عمر عطا کی کہ ساری عمر میں ایک سجدے کی توفیق نہ ہو. یہ جو مسجد میں نہیں آتے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں آتے، بلکہ پروردگار عالم ان کو اپنے دروازے سے آنے ہی نہیں دیتے، ورنہ ان کی کیا مجال ہے کہ مسجد میں نہ آئے. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب گزارتا ہے، اس کی عمر بھر کی محنت اور جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میری عاقبت بن جائے، میری صبر بن جائے. اور جس کی آخرت بن گئی اس کا سب کچھ بن گیا. وہ آج ہمیں یقین نہیں آتا، ایک وقت آئے گا کہ یہ آنکھیں دیکھیں گی، یہ دل یقین کرے گا، یہ دماغ سوچ لے گا اور اطمینان ہو جائے گا کہ جو قرآن میں تھا وہ سارا صحیح تھا، جو میرا نظریہ تھا وہ غلط تھا.
अल्लाह मियां ने पैगम्बरों के जरिए हिदायत का एक बहुत बड़ा सिलसिला कायम फरमाया। किसी पैगम्बर के जरिए किसी कौम को, किसी उम्मत को हिदायत दी, किसी पैगम्बर के जरिए किसी को हिदायत दी। एक बहुत बड़ा सवाल इन आयात में हल फरमाया खुदाबंद करीम ने, जिनकी आज मैंने तिलावत की। वो एक औरत के जहन में भी आ सकती है, बात एक मर्द के भी लिखे पढ़े तबके के दिमाग में ज्यादा आती है। और वो ये सवाल है कि आदमी जब मर जाता है, हम अपने हाथों से उठाकर उसे कब्र के गड्ढे में डाल के आते हैं। उसके खद्दो खाल को, जिस्म गोश्त को, हड्डियों को कीड़े खा जाते हैं। मिट्टी मिट्टी में मिल गई, हड्डियां खत्म हो गई, फिर हिसाबो किताब कैसा? ये एक आम सवाल है। आप भी सवाल कर ले, सवाल करने में कोई गुनाह नहीं। हर आदमी के दिमाग में जो बात आ सकती है, दुकानदार के, जिम्मेदार के, मजदूर के, कि यार ये कब्र का गढ़, हमने कई मरतबा कब्रें खोल ली। कब्र बनाते वक्त, खोदते वक्त पुरानी कब्र निकली, हमने कभी आग जलती नहीं देखी। इसलिए ये मौलवी क्यों कहते हैं कि कब्र में अजाब होता है? बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ कि लोगों ने मकान बनाए, कब्र निकली तो अंदर से हड्डियां तो निकली, मगर अंगारे तो कभी नहीं निकले। अजाब कैसे होता है? ये जो कहते हैं अजाब होगा, उसकी सूरत क्या है? ये एक मोटा सा सवाल है। कुरान करीम ने किसी चीज को नहीं छोड़ा। कसूर मेरा तेरा है कि हमने अल्लाह के कुरान से कभी पूछा ही नहीं कि फला मसला हमें समझा दे। हमने पूछा एक अनपढ़ मुल्ला से, हमने पूछा मुर्दा नहाने वाले थे, हमने पूछा मैयत के कफन डालने वाले थे। ये कोई ऐब की बात तो नहीं, मगर तालीम का तो कोई ताल्लुक नहीं लोगों से। कुरान करीम से अगर हम पूछते, खुदा की कसम आज जो पूरी दुनिया में हम जलील खार हो रहे हैं, तो हम इस तरह से कभी नहीं होते। एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि एक मुर्दे को समंदर में फेंक दिया, मछलियां खा गई, रेजा रेजा हो गया, जल गया, सड़ गया, इसको अजाब कैसे होगा? एक आदमी जल जाता है, सड़ जाता है, बिल्कुल उसका रेजा रेजा हो गया, जल कर पिघल कर राख बन गई। अब हिसाब किताब कैसा, और अब आजाब खबर कैसा, और आखिरत कैसी, क़यामत कैसी? ये एक आम सवाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सवाल और जवाब नकल कर दिए, और सवाल किया है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खलीलुल्लाह है, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर है, खुद भी नबी, बेटा भी नबी, पोता भी नबी, पड़ोसा भी नबी, हजारों अंबिया किराम के जद्द अमजद है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से सवाल कर दिया, वह क़ाल इब्राहीम, वही क़ाल इब्राहीम, फरमाया अर्ज कर दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी अरीनी, ओ मेरे मौला मेरे, और मेरे परवरदिगार, मेरे रब, मेरे पालनहार, जमीन आसमान के मालिक, रब्बी अरीनी, मुझे दिखा दे, मुझे बता दे, मुझे समझा दे क्या चीज, कैफ़ तुह्यिल मौता, तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है, मुर्दों का हिसाब किताब कैसे करेगा, इनके आज़ा को कैसे जोड़ लेगा। खाल की मिट्टी बन गई, गोश्त की मिट्टी बन गई, आँख नाक जुबान तो कीड़े खा गए, अरे तमाम चीजें खत्म हो गई, अब इनको जिंदा कैसे करेगा। रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और मालिक मेरे मुझे दिखा, मुझे बता, मुझे यकीन दिला, मैं मानता तो हूँ
तेरे हुक्मों की बजावरी करता हूँ और मुझे यकीन भी है, मगर मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, मैं देख लूं किस तरह जिंदा करता है, किस तरह से तू मुर्दों के आजा को छोड़ लेगा, तेरे सामने मुर्दा जिंदा कैसा हो जाएगा। हालांकि मुझे यकीन है, फरमाया मैं वो हूँ युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। और लोगों, जिंदा से मुर्दा को पैदा करना और मुर्दा से जिंदा को पैदा करना, ये मेरा काम है। इलाही तू कैसे कर देता है? फरमाया तूलिजुल लैला फिन्नहारि व तूलिजुल नहारा फिल्लैल। कौन है दिनों को घटाने वाला, कौन है रातों को बढ़ाने वाला, और कौन है कभी रातों को घटा करके दिनों को बढ़ाने वाला? मेरे सिवा कौन है? वतर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। और तुम्हारी समझ में मेरी खुदाई नहीं आई, मेरी रबूबियत नहीं आई, मेरी महबूदियत तुम्हारी समझ में नहीं आती। मेरे महबूद होने को तुमने आज तक नहीं माना, सिर्फ जुबान से कहते हो खुदा भी है, और सालमों तुम्हारे दिलों में मेरी खुदाई का यकीन कोई नहीं। जब भी मौका आता है तुम बरगश्ता हो जाते हो, तुम फौरन चक्कर काट जाते हो, तुम फौरन हीले वसीले बना लेते हो, तुम फौरन कहने लग जाते हो ये भी तो खुदा से बनती है, इनके भी इख्तियार में कुछ न कुछ है। कभी अली को मुश्किल कुशा कहते हो, कभी हुसैन को मुश्किल कुशा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उधर हुसैन का सारा खानदान सिबा भी कराते हो, उधर मुश्किल कुशा भी बताते हो। तुम अपने बच्चों को कभी चोट न लगने दो, हुसैन अच्छा मुश्किल कुशा है, सारा खानदान सिबा करा दिया मगर बोला तक नहीं। अल्लाह के कुरान को मानने वाले लोग कब्रों में चले गए। खुदा की कसम, अगर आज सहाबा किराम का जमाना होता हम पे कुफर का फतवा लगाते। जब भी मौका आता है हम तमाम के तमाम चक्कर काट जाते हैं, फौरन बदल जाते हैं, बात में से बात निकालने के आदी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या अजीब व गरीब अंदाज का सवाल कर दिया। तुम भी अपनी मजलिसों में कहते हो, रात को बैठ करके अपने दिलो दिमाग पर सोचते हो, चारपाई पे लेट करके भी सोचते हो जिंदा कैसे हो जाएगा आदमी, अल्लाह के सामने कैसे पेश होगा, किस तरह से सामने आएगा। फरमाया इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, और मेरे रब और मेरे परवरदिगार मुझे दिखा, मैं देखना चाहता हूँ मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा, कैसे जिंदा कर लेता है मुर्दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अंदाज तो देखो। पहले ही बात शुरू नहीं की तो मैंने अभी बात कही है, अल्लाह मियाँ ने कुरान में उसको भी नकल कर दिया। मैंने कहा ना कि हमें यकीन नहीं। अल्लाह मियाँ ने हालांकि खलीलुल्लाह के दिल की कैफियत से वाकिफ है, सर पे ताजे नबूवत उड़ा रखा है, खलीलुल्लाह अज़मतों का मालिक है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने अगली बात शुरू नहीं फरमाई। फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, और मेरे खलील क्या तुझे यकीन नहीं, क्या तुझे यकीन नहीं? अल्लाह मियाँ ने सबसे पहले वो रग पकड़ी है जो हर एक के पास होनी चाहिए। जब तक मेरा तेरा ये ईमान न बन जाए, जब तक मेरा तेरा यकीन न बन जाए, जब तक हम सबका ये यकीन न बन जाए, अल्लाह पाक मुर्दे को छोड़कर उससे हिसाब किताब करने से कादिर है, उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं। फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, और मेरे खलील क्या तुझे मेरी जात पर एतमाद नहीं, यकीन नहीं? तुमने जो सवाल किया है, क्या तेरे दिल में मैं इस काबिल, जो खुदा इब्तदान किसी चीज को बनाता है वो दोबारा नहीं बना सकता। जिसने इंसान को, जो एक गंदे पानी के कतरे से आदमी को बनाने पे कादिर है, वो बने बनाए आदमी को खत्म करके दोबारा बनाने पे कादिर नहीं। फरमाया याद रख, तू तो ऐसी शय थी, ऐसी चीज बनी हुई थी, बाप ने भी नफरत की, माँ ने भी गंदगी समझ के धोया,
حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک وقت تجھ پہ ایسا گزرا، تیری ایسی حالت تھی، تو ایسا نطفہ تھا، تو ایسے گندے پانی کا قطرہ تھا، نام لیتے ہوئے بھی شرماتے تھے. فرمایا من ماء مہین، ذلیل پانی سے میں نے کتنی خوبصورت تیری شکل بنا دی. جو خدا گندے پانی کے قطرے سے ایسی سونی بہترین شکل صورت بنا سکتا ہے، اور میرے پر یقین کرو میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. فرمایا رب ارینی کیف تحیی الموتی، اور میرے پروردگار مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے جوڑے گا، کیسے بنائے گا. مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا، آگ میں جل کر خاک ہو گیا. رب ارینی کیف تحیی الموتی، کیسے زندہ کرے گا، کیسے ان ریسوں کو جوڑے گا، کہاں سے اٹھا کر کے لائے گا. اب آگئی قال اولم تؤمن، کیا تمہیں میری خدائی پہ یقین نہیں، میری کار سازی پہ یقین نہیں، میری ربوبیت پہ یقین نہیں، میری الوہیت پہ یقین نہیں، میری عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور فرمایا قال اولم تؤمن، میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلی، ہاں میرے رب یقین تو بڑا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. مجھے یقین تو ہے، تیری ذات پہ یقین ہے، تیرے فرمان پہ یقین ہے، تیری قدرت پہ یقین ہے. میں جانتا ہوں کہ تو دنیا بھر کے پتے بناتا ہے، پتے سے تنگوریے بناتا ہے، الگ الگ شیشم کے پتے کی الگ بناوٹ، نیم کے پتے کی الگ بناوٹ، کیکر کے پتے کی الگ بناوٹ، چاول کے پتے کی الگ بناوٹ. ارے یہ ہزاروں قسم کے جو درخت ہیں، ان کے ایک ایک پتے کی بکھری بکھری الگ الگ سجاوٹ بنانے والا کون ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ ہزاروں قسم کی پھل ترکاریاں تمہارے لیے کون بناتا ہے؟ ان کے اندر ذائقے کون پیدا کرتا ہے؟ کسی کے اندر کھٹے رہتے، کسی کے اندر میٹھے رہتے، کسی کے اندر گرم مادہ، کسی کے اندر ٹھنڈا مادہ. فرمایا لوگوں اور کھانے والے حیا کر ذرا بتا تو صحیح بنایا کس نے؟ فرمایا میاں جی جس نے منڈی سے خرید کر تیرے سامنے رکھ دیا اس کا تو بڑا احسان مند ہے. فلاں آدمی نے لا کر کے مجھے 4 کیلے دیے تھے، فلاں آدمی نے لا کر مجھے 2 مالٹے دیے تھے، فلاں آدمی نے مجھے لا کر 1 کلو آم دیے تھے. فرمایا کتنا کمینہ ہے تو، کتنا بے غیرت ہے، منڈی سے اٹھا کر تیرے سامنے رکھ دیے. اس کا تو احسان مند ہے، جس نے ساری چیز کو بنایا میرا احسان تیرے یاد نہیں. مجھے یاد نہیں کرتا جس نے چنے سے بنایا، جس نے چونی خرچ کر کے روپیہ 2 روپیہ خرچ کر کے لا کے سامنے رکھ دیے. اس کے سامنے تو تیری آنکھیں چھپتی ہے شرم کے مارے کہ اس نے مجھے کھلایا. فرمایا جس نے کھانے کا پیدا کیا کبھی تیری آنکھیں مجھ سے بھی شرمائی؟ فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ فرمایا ولا، قالوا قال بلا، ہاں مجھے یقین تو پڑا، ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اطمینان دل چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں، سکون قلب کے لیے، مزید تسلی کے لیے، تشفی کے لیے. پھر اب دیکھنا چاہتا ہوں کرتا تو کیسے ہے. فرمایا میرے خلیل میرے کس کس نظام کو دیکھو گے، کس کس میری کاراگری کو دیکھو گے؟ تعریف اس خدا کی جس نے یہ سارا جہان بنایا. فرمایا میں ہوں سب کچھ کرنے والا. فریاد کی میرے رب، عرض کرنا میرا کام تھا، مانگنا میرا کام تھا. اب داتا تو ہے،
दाता तू और कोई दाता नहीं, तेरे सिवा कौन दाता हो सकता है। मैंने तो सवाल कर दिया, अब तेरी मर्जी मुझे दिखा या ना दिखा, तू इस पर कादिर है। फरमाया खलील, जो करोड़ों और अरबों मखलूक को दोबारा पैदा करेगा वो दिखा तो तुझे सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हर शख्स ने ये मुतालबा किया तो मैं कैसे दिखाऊंगा हर एक को, और कैसे देखेगा हर एक। फरमाया मेरे खलील, चलो हम तुझे दिखाकर अपने महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मैं कुरान करीम नाजिल करूंगा, ये मेरी तेरी गुफ्तगू, मेरा तेरा सवाल, ये सारे का सारा मामला मैं उस कुरान में नकल कर दूंगा। जो कलमा पढ़ने वाला होगा वो यकीन करेगा, और जो बिल्कुल ही शुरू से बेईमान होगा वो यकीन नहीं करेगा। ठीक है जी, उम्मत का ही भला हो जाएगा। बात मेरी और रब जलील की और खलील की हो रही है, नकल कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमा है। फरमाया मेरे खलील आ जाओ, आओ जंगल में। खलील पहुंच गए। फरमाया काला फखुद और बातन मिलत कईल, और मेरे खलील 4 परिंदे पकड़ो, अलग अलग नस्ल के हो, अलग अलग किस्म के हो, 4 परिंदे पकड़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे पकड़ लिए। 4 परिंदों को पकड़ने के बाद पूछा अब क्या करूं? फरमाया इनको ज़िबा करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने परिंदों को ज़िबा किया। फरमाया इनके पर उतारो, इनका रुआ उतारो, इनका एक एक बाल इकट्ठा कर लो, इनकी चूंटे काट दो, इनके पंजों को काट दो। फरमाया अब गोश्त निकल आया। फरमाया इन सारे गोश्त, इन परिंदों के गोश्त का कीमा बनाओ, और कीमा बनाकर मिला जुला दो। तमाम कीमे को मिला जुला कर फरमाया तमाम चारों तरफ पहाड़ों पे ये मिला हुआ कीमा, ये मिले हुए पर, ये मिली हुई चूचे, ये मिले हुए पंजे और नाखून तमाम के तमाम पहाड़ों पे फेंक दो। قال فخذ أربعة من الطير। फरमाया सुन ले पुराने करीम खबर खोदने वाले, सुन ले समंदर के मुर्दे पे शक करने वाले, सुन ले जले हुए मुर्दे पे ये शक करने वाले, इसका क्या बनेगा, इससे हिसाब किताब कैसे होगा। और काफिर भी यही कहा करते थे आईगा कुन्ना इज़ामन नखीरा, हिसाब ना हिसाब, मिट्टी में मिल गया, हिसाब किताब कैसा। तमाम काफिरों की यही बात थी। यही बात कहते थे सारे काफिर कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमारे सामने चला, हमारे सामने गरक हुआ, झूला नहीं मिला, मछलियां खा गई, खुदा जाने कितने जानवरों ने खाया, हाथ किसी ने खाया होगा, कान किसी ने खाया होगा, पैर किसी ने खाया होगा, ये इकट्ठा कैसे होगा। और मैं मेरे खलील आ जा, इकट्ठा होने की तरकीब दिखा तुझे देता हूँ, बता मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दूंगा। قال فخذ أربعة من الطير، इन परिंदों को पकड़ो, इनकी परों को जमा करो, इनके बालों को इकट्ठा करो, खूब मिला जुला दो, तो उसका कीमा बिल्कुल महीन बना दो, बारीक कर दो, और बना करके चारों तरफ पहाड़ों पे दूर दूर फेंकाओ। فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا،
ان کے جزوں کو، ان کے رگوں ریشوں کو، ان کی ہڈیوں کو ملا جلا کر بالکل قیمہ بنا کر ادھر ادھر پہاڑوں پہ خود پھینک کے آؤ اور تمام کو منتشر کر دو، اور پہلے ملا جلا دو ان پروں کو بھی، اس روح میں دال کو بھی، ان ہڈیوں کو بھی، تمام کو ادھر ادھر پھینک مارو، اور اس کے بعد فرمایا منہم نجزا ثم دعوہم یاتینک سایہ ثم دعوہم، فرمایا پھر بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر پرندوں کو آواز دے۔ خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف نظر ہے، دیکھ رہے ہیں، قیمے میں سے قیمہ چھٹ رہا ہے، خود بخود قیمہ چھٹا، پر چھٹے، روح چھٹا، بال چھٹے، چونچ الگ الگ تھی وہ جڑی، پنجے جڑے۔ فرمایا اے میرے خلیل بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر تم آواز دو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم تیرے بلانے پر تمام پرندے تیار ہو کر یاتینک سایہ چیچی کرتے ہوئے تیرے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام لے کر آواز دی، آنکھوں کے سامنے پر چھٹے، آنکھوں کے سامنے گوشت چھٹا، قیمہ چھٹا، الگ الگ ہوا، اور پھر ٹوٹا ہوا۔ خلیل اللہ نے دیکھا پہلے گوشت جڑا، ہڈیاں جڑی، بال جمے، پر جمے، اپنی اپنی جگہ جا کر کے سب کچھ جمع، سوچ اپنی جگہ لگی، ناخون اپنی جگہ لگی، فرمایا سنت یاتینک سایہ، اور میرے خلیل نام میرا لے اور کام نہ ہو، نام میرا لے اور کام نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور میرے خلیل جس طرح سے ان مردوں کی ہڈیاں چھٹ سکتی ہے، ان پرندوں کی ہڈیاں چھٹ گئی، ان کے گوشت کی ذرا ذرا سی بوٹی الگ الگ ہو گئی، کھیکھر جڑ گئی، ان کے پر جڑ گئے، چونچ جڑ گئی، پنجے اور ناخون جڑ گئے۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی ہے، ہمارا رجحان غلطی کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر یقین رکھا اور امت کو یقین کی تعلیم دی، وہ بہت بڑی ہے۔ تو یہ دل میں بات بٹھا لینے کے قابل ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی پہلے دنیا میں آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی دنیا، ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات انسانی پھر وجود میں آ جائے، چاہے کسی کو مرے ہوئے 1,00,000 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، قبر کے اوپر دیواریں بن گئی، محل بن گئے، مکان بن گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک ایک قبر سے باز ٹھکانے پر 100 مردہ کھڑا ہوا، ایک ایک قبر سے 100 مردہ سامنے آئے گا۔ تو یہ ساری بات یقین کی ہے۔ آج اگر کلام پاک کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لو ایمان ہی نہیں، ورنہ قبر کی زندگی، اس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، جو زمین کو چیرتے ہوئے زمین کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لو ایمان ہی نہیں، ورنہ قبر کی زندگی، جس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، جو زمین کو چیرتے ہوئے زمین کو پھاڑتے ہوئے نکیرن عام جہود ہوتے ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے فرشتے آتے ہیں، بڑے بڑے ان کے دانت، بہت لمبے لمبے ان کے بال، ڈراؤنی شکل سامنے آتے اور آ کے وہ مردے کو اللہ کے نام پر زندہ کر لیتے ہیں۔
हदीस पाक में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर मरने वाले को नकीरैन की आमद पर ऐसा वक्त मालूम होगा जैसे असर की नमाज कज़ा होने को हो रही है। ऐसा सूरज नजर आएगा जैसा कि नमाज कज़ा होने को हो रही है। फरिश्ते आते ही सवाल कर देंगे, मर रब्बू का, मर रब्बू का, मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। उलमा इकराम ने लिखा, जो आदमी नेक नमाजी है, अल्लाह वाला है, वो फौरन कहेगा, अल्लाह वालों तुम्हें सवालों की पड़ी है, मेरी नमाज कज़ा हो रही है। सऊनी उसल्ली, मुझे छोड़ो मैं अपनी नमाज पढ़ूं। फरिश्ते कहेंगे, नमाज पढ़ने का जहान क्या, अब नमाज नहीं पढ़नी। अच्छा, नमाज नहीं पढ़नी मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा, मैंने तो कभी भी कज़ा नहीं की। अब आदा है कि मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। नेक आदमी, ईमानदार आदमी, मुसलमान आदमी, नमाजी, जिसकी आखिरत अच्छी है, फौरन कहेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब मेरा परवरदिगार है, जिसने मुझे पहले पैदा किया और जिसने मुझे मारा और अब फिर पैदा किए बैठा है, वो मेरा रब। दूसरा सवाल होगा, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। आज तो दीन की बात का मजाक है, आज तो दीन फालतू फंड है। आज तेरे घर में, मेरे घर में, तेरे खानदान में, मेरे खानदान में, आज बरादरियों में दीन लघु और फजूल चीज बन करके रहे। हमारे दिमाग में ये बात है ही नहीं कि दीन के बारे में पूछ भी होगी। उन्होंने छोड़ा मियां मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। क्या दीन है, बस ठीक है, जिस राह पे कोई लग रहा थी। माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या कहेगा। दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। फिर आवाज आएगी, माँ तक़ूलु लिहाज़र रजुल। अब इस बात में आता फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे रुख, मेरी शक्ल उस मुर्दे को दिखाई जाएगी और इस्लाम को मानने वाले और खुदा को मानने वाले, माँ तक़ूलु लिहाज़र रजुल, बता ये कौन है, बता ये कौन है। इसमें अक़वाल है। बाज़ उलमा ने लिखा है, उसकी खबर से लेकर गुंबद खिदरा तक की जमीन को चीर दिया जाता है। बाज़ ने लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का अकस डाल दिया जाता है और पूछा जाता है, बताइए कौन है। दीनदार पहचान जाएगा, आगे बढ़ेगा, मेरे आका, मैं आपके कदमों पे मरना चाहता हूँ, आप तो मेरे पैगंबर हैं। और ये जो दूसरी सरकार होंगी, हर वक्त दुनिया के धंधे में फंसे रहने वाले, नमाजें कज़ा करने वाले, रोजों को बर्बाद करने वाले, बहाने बहाने ज़कात को रगड़ा चढ़ाने वाले, एक दूसरे के हकूक हमसाये की बेपरवाही करने वाले, जानी, शराबी, चोर, कातिल, बदमाश, तमाम के तमाम हर सवाल के जवाब में ये कहेंगे, हा ला अदरी, और मैं कुछ नहीं जानता, मुझे न छेड़ो, मैं अपनी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, मुझ पर बड़ी तबाही आई है, तुम्हें क्या मालूम, मौत के सदमे अजीम ने मेरी रगों को कड़वा कर दिया। हा ला अदरी, न छेड़ो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ। मर रब्बू का कहता, ला अदरी, मुझे नहीं पता रब कौन है। माँ दीनों का, मुझे नहीं पता दीन किस चीज का नाम है। मैं तो पेशाब करके संजा भी नहीं किया करता था, मुझे क्या पता दीन क्या थी। हाँ, मुझे तो ये पता है कि मेरे बेटे कितने थे, मेरे पास पैसे कितने थे, मेरी दुकानें कितनी थी,
मेरा कारोबार कितना था, मुझे इसके सिवा और कोई पता नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानता। लगा अच्छा तुझे और कुछ पता नहीं कि नहीं, मैं और कुछ नहीं जानता। हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक खुरद मारेंगे 70 से जमीन में धस जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा। हदीस में आता है अगर उस चीख को जानदार आदमी सुन ले तो जिगर फटता है, गले से शक हो जाए। और यही नहीं कि एक गुर्ज लगा तो बात खत्म हो गई, नहीं, फिर दोबारा तमाम रेजों को जोड़कर फिर बिल्कुल ठीक ठाक बंदा सही बन जाएगा, फिर गुर्ज लगेगा, क़यामत तक इसी तरह पिटाई होती रहेगी। एक हदीस में ऐसा फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जो सर से लेकर पैरों की तरफ डसता चला जाएगा और फिर सर से लेकर पैरों की तरफ डसता चला आएगा, काटता ही रहेगा, कभी पैरों की तरफ जाएगा, कभी सर की तरफ आएगा। फरमाया क़यामत तक उसका चक्कर यूं ही रहेगा, इतना जहरीला सांप होगा। हुजूर फरमाते अगर जमीन पे एक फुंकार मार दे क़यामत तक सबज घास पैदा ना हो। सारी बात यकीन वाले के लिए। उधर जिसने जवाब सही दिए, नमाज के लिए मोहलत मांगी, अब आ जाएगी फफरूजू, फरस बिछा दो, नम का तिलू, सो जा, तुझे कोई जगाने वाला नहीं, सो जा। जन्नत की तरफ खिड़की खोल दो, खुशबूदार हवा आती रहे, आराम से सोता रहे। हदीस में है हजारों लाखों बरस के बाद जब क़यामत में उठेगा, आंखें मलता हुआ यूं कहेगा कि यार यूं कैसे क़यामत आएगी, अभी तो मैं सोया था, नींद भरी भी नहीं, क़यामत पहले आ खड़ी हुई। हजारों बरस उसे ऐसे मालूम होंगे गोया अभी अभी लेटा था, अभी अभी आंख लगी थी और इतनी देर में क़यामत भी आ गई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा। 100 साल की तंदुरुस्ती एक दिन के दुख के सामने कुछ भी नहीं होती। एक रात को अगर पसली में दर्द हो जाए, ऐसा मालूम होता है कि सारी उम्र में कभी तंदुरुस्ती देखी ही नहीं। कभी मरीज के पास बैठ के देखो ना, रात काटी नहीं कटती, खुदा जाने कितनी लंबी रात हो जाती है, हालांकि रात वही है। सुखिया के रात बड़ी, सुखिया की रात छोटी। हजारों साल भी उसके लिए कुछ नहीं। बात कर रहा था खुदावंद करीम ने ये सारी चीजें हमें समझा दी है, और अब तो मौत के मामलात भी तुम्हारे सामने हैं। किस किस तरह से मौत आ रही है। 300 के करीब आदमी कोई उम्रे के इरादे से अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए गया, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खिदरा पे हाजिरी के लिए गया, कोई मजदूरी और कमाई के लिए, कोई सफर के लिए, कोई तिजारत के लिए, कोई किसी लिए सफर में सवार हुआ। एक सेकंड पहले इत्तला न हो सकी। कराची से जहाज उड़ता है, बखैरियत रियाज पहुंचता है, सैकड़ों आदमी यहाँ से गए हुए उतरते हैं, वहां से और नए चढ़ते हैं। जिनकी जिंदगी है वो उतर रहे हैं, जिनकी 5 मिनट के बाद मौत आई हुई है वो चढ़ रहे हैं। खुदा का निजाम तो देखो। जिनकी उम्र बाकी है वो जहाज में से रियाद के हवाई अड्डे से उतर रहे हैं, और जिनकी आई हुई है फरमाया तुम्हारा भी वक्त बाकी है, तुम जाओ, और तुम्हारा आ चुका है, तुम आ जाओ। दिल में खुदा जाने क्या क्या अरमान होंगे, क्या क्या तसल्लियां होंगी, कितने सब अपने दिलों में अरमान बसा रखे होंगे, क्या क्या दिलों के अंदर अपने असबाब लिए बैठे होंगे। 3, 4, 5 मिनट नहीं लगे, जहाज में आग लगती है। वो टावर को इत्तला करता है कि मेरे कैबिन में आग लगी है,
रन में साफ कर दो, मैं जल्दी उतरना चाहता हूँ। और उतर भी गया और कहता जल्दी सवारियों को उतारो। अल्लाह मियां ने फरमाया उतरेगा कौन जब मैंने सबको घेरा दे दिया। खैर दरगीद खड़ा है, इंतजाम सारे चारों तरफ मौजूद है, अगर जिसका वक्त आ गया वो जा रहा है। 300 के करीब आदमी जल कर खा, सारा जहान जल जाए, हम बदलेंगे थोड़े ही, जितने ही मर जाए। हिंदुस्तान में मुसलमान कट रहे हैं, हम नमाज के नेड़े नहीं जाते, जुएबाज जुआ नहीं छोड़ता, शराबी शराब नहीं छोड़ता, हरामी बदमाश जानी जिना से बाज नहीं आता। कितने मुसलमान मर जाए। अफगानिस्तान में क्या कत्लो गारत है, हिंदुस्तान में कत्लो गारत है। 300 आदमी एक जहाज में चल रहा है, मगर बजाना जो मस्जिद में एक नमाजी बढ़ता है। जिन बेईमानों को दिलों पे मोहर लगी हुई है वो उन्होंने आना ही नहीं, इस तरफ लगना ही नहीं। जितना नौजवान तबका है होटलों पे बैठ के गप्पे मारेंगे, सिगरेट पियेंगे, चाय पियेंगे, बकवास करेंगे, मस्जिद में नहीं आना। तो देख लो आखिर यूं आएगी, और पहले भी आई लोगों की, और अब भी आ रही, तुम्हारी भी यूं आएगी। ना मालूम सड़क से आएगी, जहाज में आएगी, घर पे आएगी, अस्पताल में मौका खुदा जाने का आएगी, और फिर मरने के बाद जिंदा भी होना, जैसे मैंने भी बतला। तो जब ये यकीन दिल में रासिक हो गया और दिल में बात बैठ गई और रोजाना मुशाहिदा हो रहा है, अब तो भाई तैयारी करनी चाहिए। अब तो तैयारी का वक्त है, और अब तो खुदावंद आलम की हुजूरी में हाजिर होने का वक्त है। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ भी करो और कोशिश भी करो कि खुदावंद करीम मुझे और आप सबको ऐसी तौफीक दे कि मरने से पहले ईमान की दौलत अता हो जाए। वरना अगर ऐसा न हुआ, खुदा की कसम मारे जाओगे। कफन मिले या न मिले, उछल का पानी थोड़ा हो या ज्यादा हो, खबर छोटी हो या बड़ी हो, कुछ भी हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अगर करम ना हो, आदमी कर खुदाबंद आलम की करीमी ना हो, और आदमी उसके दरवाजे का मोहताज बनकर अगर ना मरे, तो बात नहीं बनती, बनी नहीं सकती, बिगड़ती है। मुशाहिदे भी हुए हैं बेशुमार लोगों को, दुनिया ही में देखा बेशुमार लोगों। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी बहुत अल्लाह वाला था, बुजुर्ग था, वो फौत हुआ तो ख्वाब में किसी ने देखा, पूछा बताओ कैसी गुजरी। कहने लगा क्या बताऊं, यहाँ का काम बिल्कुल निराला है। मैंने एक दूसरे के हक को पूरा करने की सरतोड़ कोशिश की, मेरे घर में पड़ोसियों की मांगी हुई सुई बाकी रह गई। रब्बे अकबर की कसम, वो सुई मुझे तंग कर रही है, एक सुई मुझे सता रही है दूसरे की। हमें लाखों करोड़ों की परवाह नहीं होती, मिल जाए, मिले सही, बस ना मिले तो आप आधारे बस। सरकारी पैसा मिले, कौम का पैसा मिले, रिश्तेदारों का पैसा हाथ में आ जाए, जाने हम वापस करने के लिए तैयार हो, जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा उसे रगड़ा कराए। ऐसे खुराक खाने से क्या फायदा, ऐसे कपड़े पहनने से क्या फायदा। सारी दुनिया को आज गिला है अल्लाह पाक से कि दुआएं कबूल नहीं होती। दूध में पानी मिला मिला करके तो कपड़े जोड़े खरीदते हो, अब दुआ कबूल होनी चाहिए। हर चीज में मिलावट कर करके तो हम अपने आप को पाल रहे हैं। जब हराम रोजी से बदन चलेगा, जब हराम रोजी से कपड़ा बनेगा, जब हराम रोजी से आदमी की नशो नुमा होगी और हराम रोजी से आदमी का कारोबार चलेगा, तो फिर काम कैसे आए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन अपनी जिंदगियों में इस कदर ग्रेड किया करते थे कि गलत किस्म का लुकमा अंदर न चला जाए। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक सबके रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 दिन का फाका है सिद्दीक अकबर का, और गुलाम ने ला करके थोड़ा सा खाना दिया। 3 दिन के फाके के बाद 2-3 लुकमे खा लिए। अब गुलाम से पूछा कि कहाँ से लाया था, गुलाम से पूछा कहाँ से लाया था। उसने कहा यहूदियों के यहाँ शादी थी, मेरी उनसे ताल्लुकदारी थी, मैं गुजर रहा था, उन्होंने मुझे खाना दिया था। फिर मैं वाह 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 वाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस खाने को निकालने के लिए हलक में उंगल मारी,
बोला 3 दिन से पेट खाली हो, 2-4 लुकमे अंदर गए हो, वापस कैसे आए? किसी ने तरकीब बताई कि पानी पीकर हलक में उंगली मारो, पानी पी पी कर उंगली मारी, जब तक वो लुकमे बाहर न आ गए सिद्दीक ने चैन न। हमारा भी अगर ये मिजाज बन जाए तो हम सब कुछ इस दुनिया में कमा सकते हैं। क्या जरूरत है काफिर की कि हम पे गालिब हो जाए? हम पे गालिब इसलिए हो रहे हैं कि असल हथियार जो हमारा ईमान था वो कमजोर पड़ गया, बल्कि वो रहा ही नहीं, इसलिए पूरी दुनिया दुश्मन बन गई। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सच्चा मुसलमान, सबका दीनदार बनाए। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अगले जुमे को आप और मैं तो ख्याल नहीं करते, प्रोपेगेंडे के हम सब लोग शिकार हो गए। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयद शुहदा, पैगंबर के प्यारे चचे की शहादत बयान होगी। उस सहाबी की शहादत जिसके टुकड़ों के पास बैठकर काली कमली वाले ने आंसू बहाए। हमें तो तारीख भी मालूम नहीं, डूब कर मर गए पुण्य कहलाते हुए। तुम्हें तो अपने सहाबा और नबी के प्यारे चचा की शहादत का इल्म नहीं, इसलिए जैसा कैसा मुझसे मुमकिन हो सकेगा इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को यौम अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनाएंगे और सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बयान होगा। आप लोग भी आए, दूसरे साथियों को भी बतलाएं, ताकि ऐसे मौके पर वो आदमी भी सुन ले जिसने कभी न सुना हो और वो भी जान जाए कि पैगंबर का चचा कैसा था। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबी उम्मील आशिरी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह सबकी मुश्किलों को आसान फरमा। कई साथी हैं जिनके रोजगार का मसला है, दुआ कर दे अल्लाह पाक अपने फज़ल करम से अता फरमाए। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, सबकी मुश्किलों को आसान फरमा दे, सबकी बीमारियों को दूर फरमा दे, सभी के दुख दर्दों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की बिगड़ी बना दे। कई लोगों के रिश्ते नातों की परेशानियां हैं, अल्लाह पाक अपने फजल करम से गैर से ये असबाब मुहैया कर दे, गैर से हालात पैदा फरमा दे। जहाँ बेहतर से बेहतर अल्लाह पाक वही सबको अपने फजल करम से पहुँचा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि।